फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं लाइव पीएम एट जॉइंट प्रेस मीट विद प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। तो भैया ट्रेड डील हो चुकी है, साइन हो चुकी है। बहुत ही इसको कहा जा रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स इन ऑफ द वर्ल्ड। इस टाइप से इसको बोला जा रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और सुनते हैं कि क्या बोला गया प्रेस मीट के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अंकल का नया चैनल जो है अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लेना। आज एक और बड़ी न्यूज़ आई है, तो लिंक है क्या, अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और चैनल का नाम है अमेरिकन देसी टीवी। तो चलो देखते हैं ये बिग, मतलब वर्ल्ड आज इस साल की अभी तक की सबसे बड़ी खबर। Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of Bharat, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several agreements and MOUs. These documents reflect the wide-ranging, multifaceted bilateral cooperation as part of the India-EU strategic cooperation, strategic partnership. We will begin with the signing and exchange of political declaration on conclusion of negotiations. किसी बंदे अच्छे को बोलना लाना चाहिए था जो इंग्लिश अच्छी और वेल वे से बोले। This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. फोटो ले रहे हैं लोग कि भैया हिस्ट्री इज बीइंग क्रिएटेड। देखो भाई उसने ऐसे किया था पीयूष गोयल को। मेजर टॉक्स वर्क्स इस डील के लिए पीयूष गोयल ने तो की है। ही वाज वन ऑफ द मेन पीपल टू गो टॉक एंड एवरीथिंग। The next document to be signed is the India-EU Security and Defence Partnership. This document will be signed by Her Excellency Ms. Kaja Kallas, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, and the ये Vice हर President of the एक्सीलेंसी क्यों European सबको Commission, बोलते हैं and सोनिया? Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. सीधा नाम बोले हर एक्सीलेंसी, ये क्यों बोलते हैं? मुझे समझ नहीं आया। जैसे डॉक्टर जयशंकर बोला उसका नाम बोलो, वो बेटर नहीं शी में लगता? भी रॉयल, तो हम क्या करें, रॉयल है उस तो हिसाब से ये अर्सला इज आल्सो रॉयल। हम क्या करें? अर्सला कैसे रॉयल है? वो भी वेंदर लेयन का मतलब है ऑफ द We now लेन। have the signing of the Comprehensive Framework on Cooperation on Mobility. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros ये सारे Sefcovic, His European Excellency सब Commissioner for Trade and Economic Security, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. ये वही सेम बंदा है, अभी उसने किया था पीयूष गोयल के साथ किया था। A few documents will now be exchanged. The administrative arrangement on cooperation and disaster risk management will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India. उनको हर एक्सेलेंसी है तो हमारे को भी बोलो यार एक्सेलेंसी। हमारे एक्सेलेंसी नहीं है ना। हाँ, तो इनकी कहाँ से एक्सेलेंसी आई है? डोंट नो, दे नीड टू फिगर आउट। हाँ, पता नहीं क्या एक्सेलेंसी है। जो बंदा बोल रहा है उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं तो क्या करें। The agreement on constitution of a green hydrogen task force will be exchanged between His Excellency Mr. फिर Hervé Delphin, excellency। EU Ambassador to India, and Shri C.V. George,
Secretary West in the Ministry of External Affairs. They should not say His Excellency, His Excellency. क्या दूसरी कंट्रीज में जाते तो उनको His Excellency, Her Excellency थोड़ी कोई बोलते होंगे? यानी कौन से पुराने जमाने का His Excellency चलिए जा रहा है? Lastly, two documents, namely the MOU between the Reserve Bank of India and the European Securities and Market Authority and the administrative arrangement on advanced electronic seals and signatures will be exchanged between His Excellency Mr. Herbert Dilphin, EU तो Ambassador जब of इसी India, से उनको गुस्सा चढ़ता है, and पता नहीं Shri इरिटेशन हो Saurabh रही है Kumar, मुझे. Ambassador of India in Brussels. कौन है दिखाओ? अब हो चुका है इनका. हो गया सर? Before I conclude this segment on exchange ceremony, I would also like to announce that India and the European Union have agreed on a strategy document titled क्या? Towards 2030, a joint India-European Union comprehensive strategic agenda. बहुत अच्छा I बंदा now लाना request the बोलने का. spokesperson of the Ministry of What External the- Affairs to conduct the rest of the proceedings. है कौन? I don't know. Good afternoon, Your His Excellency Mr. Antonio Costa, President of the European Council, कौन बोल रहा and है? Her Excellency Ms. ये जो Ursula हमारे von भाई der साहब बोलते हैं Leyen, spokesman. President of the European Commission, दिखाओ Honorable तो. Prime Minister Shri somebody Narendra else Modi, now. Honorable Ministers, है कौन? members of both delegations, distinguished guests, सारी statement देते and हैं. friends from the media. तो We will इनकी now have the focus press क्यों नहीं कर रहे statements. वहाँ? May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to give his remarks to the media. Your Excellencies, President Antonio Costa, our President Ursula von der Leyen, दोनों देशों के Von der Leyen. डेलीगेट्स, Ted मीडिया Leyen. के साथियों, बहुत है. नमस्कार. Von der Leyen. अपने दो करीबी मित्रों, प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का ठीक बोल रहा है? इस अभूतपूर्व भारत Von यात्रा der में Leyen. स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं. अच्छा. और उर्सुला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है. कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार 26 यूरोपियन जनवरी. यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह देखा? में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है. फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है. आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है. 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं. हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं. इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं. फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है. सबसे बड़ा इतिहास का.
27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को मुझे तो लग रहा है ज्यादा और फायदा प्रबल सर्विस करेगा। सेक्टर को होएगा इससे। इतना आई ही एम नहीं, होपिंग। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा और इसके साथ हमारी डिफेंस कंपनियां को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। Friends, जो ट्रांसलेट कर रही है ना आज लेडी, की उसकी भी आवाजें आ रही हैं उपलब्धियों के साथ में। हम अगले 5 वर्ष के लिए उनके हेडफोन्स के। एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में ये एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा और पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करेगा। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट को ठोस समर्थन मिलेगा। हम साथ मिलकर आईमेक कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। तो भाई वॉट एन अचीवमेंट। बहुत ही मतलब हिस्ट्री में जैसे कह रहे हैं एक बहुत बड़ा एक इतिहास में लिखा गया है कि एक अकम्पलिशमेंट है। अब इससे यही होप है कि इंडिया की ग्रोथ और होए और हमारी डेवलपमेंट और तेज़ी से होए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पूरा, और कह रहे हैं मोदी जी ने खुद ही बोल दिया है कि भैया ये हमारे लिए सबसे बड़ी अभी तक की ट्रेड डील है उस टाइप से। तो अब देखेंगे कि अब इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। और इससे ये भी बता रहे थे मोदी जी कि भैया जो जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाने के लिए, जिनको नौकरी करनी है उनके लिए भी ईजी हो जाएगा अब जाना। तो दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। तो अब इतना मतलब जिस ट्रेड डील को अब इन्होंने किया है उससे वहाँ से चीज़ें आनी और यहाँ से चीज़ें जानी वो आसान हो जाएंगी और सस्ती होएंगी दोनों देशों के लिए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और सोच समझ के किया है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने अभी सुना था कि हमारे फार्मर्स को नुकसान ना हो तो उस हिसाब से ट्रेड डील की गई है। तो फार्मर्स के मतलब वो चीज़ें जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या कुछ
जो है वो उनको मेक श्योर किया है कि वो जो है वहां से ना आए, ताकि यहाँ बहुत पे अच्छी बात है। यहाँ पे इंडिया में कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ चीज़ें बेटर होंगी, इंडियंस को यूरोपियन चीज़ें नज़र आएंगी तो वो पूछेंगे हमें पहले तुम ये इतनी अच्छी हाई क्वालिटी क्यों नहीं दे रहे थे। फिर इंडियन कंपनीज को भी हाई क्वालिटी चीज़ें करनी पड़ेगी। वो तो है, वो तो मैं भी मानती हूँ। कंपटीशन अच्छा होता है और उससे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आएंगे और लोगों को फायदा होगा। हाँ, इंडियंस को जो है, हाँ आप लोगों को, हम लोगों को इंडिया में उतने ही पैसे में आपको ज्यादा हाई क्वालिटी हाँ, चीजें मिलेंगी बिकॉज ऑफ कंपटीशन। Exactly. कोई आपको ऐसी आलतू और आपके पास चॉइस होगी, अब आपको मजबूरी नहीं होगी, आपके पास चॉइस होगी कि आप क्या लेना चाहते हो, और जो आपको पसंद है, आपको लगेगा कि भैया ये क्वालिटी अच्छी है तो मैं वही लूंगा। तो वो बहुत अच्छी बात है कि आम इंसान के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट अब होंगे, क्योंकि जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वही वो आम इंसान लेगा, और दूसरे की जो है धंधा बंद होगा तो उसको भी अब बेटर देना पड़ेगा। कोई चूना नहीं लगा सकता एक आम कंज्यूमर को। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।